Hello students, welcome to my channel. Today we will discuss the topic packaging of DNA helix. So what is the meaning of packaging? Packaging means to pack something. तो हमने इस वीडियो में ये पढ़ना है कि डीएनए को हम कैसे पैक करेंगे, बिकॉज जो डीएनए है वो बहुत ही लॉन्ग मॉलिक्यूल है. इट इज़ अ बायोमोलिक्यूल एंड इट इज़ वेरी लॉन्ग. And where it is present? It is present in the nucleus. And the size of the cell that is very small. और अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस का साइज तो उससे भी छोटा है. तो हमें डीएनए को, इतने लॉन्ग मॉलिक्यूल को सेल के न्यूक्लियस के अंदर पैक करना है. सो हाउ वी कैन पैक दिस डीएनए इन द न्यूक्लियस, that we will understand in this video. So that is the objective of this video, to pack the DNA in the nucleus, and how this packaging is done, that we will discuss. So let's come to the point. Packaging of DNA helix means to pack DNA. अगर हम हॉस्टल स्टूडेंट्स की बात करें, जो हॉस्टल स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास बहुत ही सारा सामान होता है. जब वो अपने घर आते हैं तो एक छोटे से बैग के अंदर वो अपनी सारा सामान रख लेते हैं. अपनी बुक्स हैं, अपने क्लॉथ्स हैं, और जो भी सामान है वो एक छोटे से बैग के अंदर पैक कर लेते हैं. तो वो कैसे पैक करते हैं, वो कुछ ना कुछ मेथड अप्लाई करते हैं और किस तरह से एक छोटे से बैग के अंदर सारे सामान को पैक कर लेते हैं. ऐसे ही द पैकेजिंग ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस, एंड दैट टेक्स प्लेस इन द न्यूक्लियस. वाई? बिकॉज डीएनए इज प्रेजेंट इन द nucleus of the cell. Suppose this is the cell and this is the nucleus. That is the cell, because cell have the different components: cell membrane, cytoplasm and the nucleus. And in the nucleus DNA is present. जो DNA है वो हमारा कहाँ पर प्रेजेंट है? न्यूक्लियस के अंदर. इफ़ वी कंपेयर द साइज ऑफ द सेल, जो साइज होता है सेल का अप्रोक्सीमेटली 1 माइक्रोमीटर. ये जो साइज़ की स्मॉलेस्ट यूनिट है माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर. और अगर हम बात करें न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस का साइज दैट इज़ ऑल्सो स्मॉल एज़ कंपेयर टू द सेल. तो अगर हम मीटर में बात करें 10⁻⁻⁶ मीटर साइज होता है किसका? न्यूक्लियस का. ओके. एंड इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग द टोटल लेंथ ऑफ डीएनए दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 2.2 मीटर. अब ये 2.2 मीटर का जो डीएनए है और इसको हमें 10⁻⁻⁶ मीटर जो साइज़ है न्यूक्लियस का, इसके अंदर हमें पैक करना है. तो इतना लॉन्ग मॉलिक्यूल, इसको हम कैसे पैक करेंगे? तो हम पैक करने के लिए क्या करते हैं, उसकी फोल्डिंग करेंगे. द फोल्डिंग ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस, एंड हाउ दिस फोल्डिंग टेक्स प्लेस दैट वी हैव टू डिस्कस. सो फर्स्टली I told you that the length of the human DNA that is 2.2 meter. So how this come? Means how we can know that the length of the DNA that is 2.2 meter. So how we come to know that the length of the DNA? So if that is the double helical structure of DNA, in this DNA the pitch of that DNA helix that is 34 angstrom, and the distance between the two base pair that is 0.34 nanometer. Means in this pitch, in this turn, you can say there are the 10 base pairs present in this pitch, and the distance between the two base pair that is 0.34 nanometer. So how we can calculate the length of the DNA? Firstly, the distance between the two base pair that is 0.34 nanometer. But this nanometer that is equal to the 1 billionth part of the meter. So if we multiply it
into 10 is to power minus 9, then it can change into meter. So now we can write 0.34 into 10 is to power minus 9 meter. After that, the total number of base pairs in case of human being, and that you are aware, that is the 6.6 into 10 is to power 9 base pair. Now how you can calculate the total length? That is the distance between the base pair into the total number of base pair. So the distance, that is 0.34 into 10 is to power minus 9 into 6.6 into 10 is to power 9. So the value is 2.2 meter. So that is the total length of the human DNA, and this human DNA have to pack in the nucleus of the cell, and the size of the nucleus is very small. So how this packaging takes place in case of eukaryotes, also in case of prokaryotes, that we have to discuss. So firstly, let us discuss the packaging of DNA in case of prokaryotes. So what are prokaryotes? Prokaryotes, they are the primitive organisms, and they are unicellular and prokaryotic. Why? Because nucleus is not well defined in them. Nucleus is known as the nucleoid. The membrane bound organelles are absent, and mostly the membrane bound organelles are absent except the ribosomes. Examples of prokaryote, that is the bacteria. So how this packaging takes place in case of prokaryotes, that we have to discuss now. Now the packaging in case of prokaryotes. So prokaryotes, pro means the primitive, karyotes means the nucleus. So in them the primitive nucleus is there, nucleus is not well defined. So example is the E. coli, Escherichia coli, that is the bacteria. So how this packaging takes place in the bacteria? So in case of bacteria, the nucleus is not well defined, and that is known as the nucleoid, and the DNA is scattered in the cytoplasm. DNA is not present in the nucleus because nucleus is not well defined, and this DNA is present in the cytoplasm, or it is scattered in the cytoplasm. So in case of E. coli, the nucleoid is there, nucleus, the undefined nucleus is the nucleoid, and it organized into large loops. ये large loops की फॉर्म में अरेंज होगा इस तरह से इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, और इसके अराउंड जो प्रोटीन्स होंगे, सेंटर में जैसे प्रोटीन्स आर देयर, और इन प्रोटीन्स के अराउंड ये लूप्स में अरेंज होगा इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स. नाउ you come to know and how you can learn that DNA have the negative or the positive charge. So DNA with the help of the name, इसमें N आया हुआ है, N से नेगेटिव, तो हमेशा याद रखोगे DNA कैरी नेगेटिव चार्ज, और प्रोटीन में P आया हुआ है तो मीन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड. जो प्रोटीन्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज भी होते हैं, नेगेटिवली चार्ज भी होते हैं. वो किस वजह से होते हैं? बिकॉज द प्रोटीन आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड, और अगर उन अमीनो एसिड्स में पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो पॉजिटिव होंगे, और नेगेटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव होंगे. हाउ यू कैन कम टू नो? प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो ये अमीनो एसिड के बने होते हैं, और अमीनो एसिड में सेंटर में 1 कार्बन इज देयर, एंड दिस कार्बन इज ज्वाइंड विद 1 हाइड्रोजन, 1 R ग्रुप, 1 COOH group, and 1 is the NH3 group. ओके, सो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है किसका? अमीनो एसिड का. और अमीनो एसिड में इसकी वजह से क्या होता है? नेगेटिव चार्ज. कार्बोक्सिलिक एसिड की वजह से नेगेटिव चार्ज होता है, और ये NH2 होता है पहले, फिर ये NH3 हो जाता है पॉजिटिव. अगर अमीनो ग्रुप ज़्यादा होगा तो प्रोटीन्स आर पॉजिटिव, and if the carboxylic group are more, then we can say the negative. So these proteins are positively charged.
तो प्रोकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। जो आप हमारा डीएनए है वो साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होगा और पैकेजिंग कैसे होगी, लूप्स की फॉर्म में, लार्ज लूप्स की फॉर्म में, और जो प्रोटीन्स उनको क्या करेंगे, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स उनको बाइंड करेंगे। नाउ द पैकेजिंग इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। In case of eukaryotes, U means true, karyotes means nucleus. So except the bacteria, other are belongs to the eukaryotes. So we all the human beings, they also belongs to the eukaryotes. So in case of eukaryotes, how the packaging of DNA takes place? In eukaryotes, that is more complex, because in this case the DNA that is coiled around the positively charged proteins, and these positively charged proteins are known as the histone proteins. Why these are positively charged? Because they have the basic amino acid lysine and arginine. Due to the presence of these amino acid, these histone proteins are positively charged. Now how many types of histone proteins are there? There are the 5 types of histone proteins. The first, that is the H1, second H2A, H2B, H3 and H4. Except H1, these two H2A, H2B, H3 and H4, इनकी 2 कॉपीज़ होंगी, मीन्स ये 4 हैं तो ये 8 हो जाएंगे इकट्ठे। सो देन दे मेक ओक्टामर, जो हिस्टोन्स का ओक्टामर बनेगा, बिकॉज ये 4 प्रोटीन्स जो हैं इनके डाइमर होंगे, तो 2 यूनिट होंगी, एक यूनिट होगी H2A, इसके साथ दूसरी यूनिट भी होगी H2A, H2B, H3, H4। सिंपल मैं आपको एक बार बता देती हूँ। सपोज़ अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे ये प्रोटीन्स हैं, तो इस तरह से ये 4 प्रोटीन आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा H2A, H2B, देन H3, H4। अब ये H2A है, एक H2A इसके पीछे होगा, H2B यहाँ होगा, H3 इधर होगा और H4 यहाँ पर होगा। तो हाउ मैनी प्रोटीन्स? नाउ 8 proteins are there, and these 8 proteins make an octamer, और ये octamer now you can see, this is the, you can write here, histone octamer। So histone proteins 5 types, H1, H2A, H2B, H3 and H4. So why these are positively charged? Because the basic proteins are there, basic amino acids are present in them, lysine and arginine, and proteins are positively charged and DNA is negatively charged, and you are aware that there is the attraction between the positive and the नेगेटिव चार्ज। तो इस तरीके से सपोज अगर हम ये बोल रहे हैं कि these are the proteins, these are the histone proteins, और इन histone proteins के अराउंड हमने क्या करना है, DNA को कॉइल करना है। तो इस तरह से जो DNA है histone proteins के अराउंड क्या हो जाएगा, कॉइल हो जाएगा। You can see the coiling of the DNA around the histone proteins। इस तरह से जो coiling हो जाएगी DNA की, तो जो जितना DNA इनके अराउंड coil होगा उस DNA में ऑलमोस्ट कितने बेस पेयर्स होंगे, 200 बेस पेयर्स। हाउ मैनी बेस पेयर्स आर देयर, 200 बेस पेयर्स। तो इस तरह से जो ये DNA है ये इसके अराउंड क्या हो रहा है, रैप हो रहा है हिस्टोन ऑक्टामर के अराउंड, and now one outside H1 histone is present। ये H1 histone जो है इस DNA को लिंक करके रखेगा। सपोज़ अगर मैं यहाँ पे इस DNA को इसके अराउंड कोयल कर रही हूँ और बाहर इनको कोई रोकने वाला नहीं है, तो ये लिंक नहीं रहेगा। यहाँ भी इसको
कुछ पकड़ने वाला चाहिए, फिर ये दूसरी प्रोटीन्स के अराउंड रैप होगा। तो यहाँ पे जो लिंक का काम करेगा दैट इज़ द H1 हिस्टोन। सो अब जो ये अपीयरेंस जो आई है, हम प्रोटीन्स के अराउंड ऐसे डीएनए को कॉइल कर रहे हैं, तो जो ये एक बीड्स की जो अपीयरेंस है इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोसोम। और जो ये न्यूक्लियोसोम है, जब हम डीएनए को देखते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल को देखते हैं, तो हमें वो लगता है बीड्स। दीज बीड्स आर नथिंग बट दीज आर द न्यूक्लियोसोम एंड द स्ट्रिंग। तो एक स्ट्रिंग में ये बीड्स की तरह हमें दिखाई देंगे। जैसे अगर हम इसको ही एक स्ट्रिंग मान लें, तो इस स्ट्रिंग में जो ये आपको गोल्डन कलर के बीड्स दिख रहे हैं, तो ये सारे बीड्स क्या हैं? न्यूक्लियोसोम। So that is the nucleosome. The nucleosome carry the histone proteins and that octamer bind the DNA because DNA can coil around it. And how many base pairs of the DNA? 200 base pair. और DNA में कितने base pairs थे? अभी हमने पढ़ा था, तो so many base pairs are there, 6.6 into 10⁻⁻⁹ बेस पेयर। तो इतने ज़्यादा बेस पेयर हैं, तो ऐसे डीएनए जो है बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स के अराउंड ऐसे रैप करता जाएगा, बहुत ज़्यादा फर्दर कॉइलिंग होगी, तो उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम देन फर्दर कॉइल्ड, फिर आगे सुपर कॉइलिंग होगी और उससे जो बनेगा दैट इज़ द क्रोमेटिन फाइबर्स एंड देन दीज क्रोमेटिन फाइबर्स गिव राइज टू क्रोमोसोम्स एंड क्रोमोसोम्स दैट आर easily visible during the metaphase stage of the cell division. Now with the help of one diagram you can understand it better. With the help of this diagram you can better understand that DNA, that is the double helical structure, और जब हम उसको कंडेंस करेंगे और थोड़ा सा पैक करेंगे तो वो किसके अराउंड पैक हो जाएगा? न्यूक्लियोसोम्स के अराउंड। और तो न्यूक्लियोसोम के अराउंड इस तरह से बीड्स, जो देयर इज़ द बीड्स आर देयर, और ये फर्दर इनकी कॉइलिंग होगी जिससे गिव राइज टू द क्रोमेटिन फाइबर। जो क्रोमा वर्ड जो रिलेट करता है वो स्टेन से करता है, जैसे हम बोलते हैं क्रोमोसोम। सो क्रोमो मीन्स कलर्ड, जोमा मीन्स बॉडी। सो द कलर्ड बॉडी जो स्टेन एक्वायर करती है उसको हम बोलेंगे क्रोमोसोम। तो ऐसे ही क्रोमेटिन मीन्स जो क्रोमेटिन फाइबर है, अगर हम इसको स्टेन करेंगे तो ये स्टेन एक्वायर करेगी। तो न्यूक्लियोसोम जो है फर्दर ये और सुपर कॉइलिंग होगी और इससे जो बनेगा दैट इज़ द क्रोमेटिन फाइबर्स। और ये क्रोमेटिन फाइबर्स में कहीं कहीं पे जो ये न्यूक्लियोसोम्स की बीड्स हैं ये इकट्ठी होंगी, कहीं पे ये थोड़ी सी लूजली पैक हो जाएंगी, थोड़ी सी खुल जाएंगी। तो जहाँ पे सपोज़ जैसे मैंने यहाँ पे 3 मार्कर ले रखे हैं, एक मार्कर, तो ये 3 वाले आपको ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो जहाँ जिस रीजन पे क्रोमेटिन मटेरियल ज़्यादा प्रेजेंट होगा, ये बीड्स ज़्यादा प्रेजेंट होंगी, उस रीजन को हम बोल देंगे हिट्रोक्रोमेटिन। सो हिट्रोक्रोमेटिन होगा जब हम इसको स्टेन करेंगे दैट इज़ डार्कली स्टेन्ड, और इसमें जो डीएनए है दैट इज़ डेंसली, बहुत ही पास पैक होगा। सपोज़ कोई भी आपके पास जैसे कोई भी धागा है और धागे की जैसे गांठें लग जाती हैं, तो जहाँ पे गांठ होगी वो आपको बहुत अच्छे से दिखेगी, जहाँ से वो खुला होगा वो दूर हो जाएगा। तो जहाँ पे गांठें होंगी उसको आप मान सकते हो हिट्रोक्रोमेटिन। सो दैट इज़ द डार्कली स्टेन्ड, और ये डेंसली पैक होगा, बिल्कुल पास पैकिंग होगी। ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। ट्रांसक्रिप्शन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन? सेंट्रल डोग्मा में मैंने आपको बताया देयर इज़ द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। तो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी हिट्रोक्रोमेटिन में। एंड द सेकंड जो क्रोमेटिन हम बोलेंगे जो लाइट कलर्ड होगा और ये लाइटली स्टेन्ड होगा, इट इज़ लूजली पैक। क्रोमेटिन हम ले लेंगे, क्रोमेटिन, सो दैट इज़ लाइटली स्टेन्ड, लूजली पैक्ड होगा, और ट्रांसक्रिप्शनली क्या होगा? एक्टिव होगा। ओके,
So that was the packaging of the DNA helix in case of prokaryotes and eukaryotes. Let's revise. So the DNA, that is the very long molecule, the size of the cell, also the size of the nucleus, that is very small. So we have to pack the DNA. So the packaging of the DNA around the proteins takes place, because proteins are positively charged and the DNA is negatively charged. In case of prokaryotes, that is not so more complex, it is the simple, because the nucleus is not well defined in case of prokaryotes. So the DNA that is coiled in the form of loops around some positively charged proteins. And in case of eukaryotes, the organization is more complex. DNA is coiled around positively charged histone proteins, because they carry the basic amino acids lysine and arginine, and the DNA is coiled around these proteins, make a structure. That structure is known as nucleosome. So this nucleosome give rise means bead like appearance on a string, and then these beads give rise to chromatin fibers. These chromatin fibers then give rise to chromosome. तो हम फाइनली ये कह सकते हैं कि क्रोमोसोम जो है वो बिल्कुल कंडेंस फॉर्म है डीएनए की. क्रोमोसोम के अंदर डीएनए जो है बिल्कुल सुपर कॉइल्ड फॉर्म में पैक हो जाएगा. ओके, सो दैट वाज अबाउट द पैकेजिंग ऑफ डीएनए helix. I hope you understood. Thank you. Have a nice day.